हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इन्वायरमेंट मास्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है इंजीनियर ऋषभ सिंह। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ गेट 2020 which is being generated by the IIT Bombay yesterday. In this syllabus, we are going to discuss about the environmental science and engineering subject specifically, and we will also get to know about the highlights of GATE 2021, use of GATE score for employment, how the GATE score will be useful for the employment, then what are the different combinations of subjects so that we can appear in the GATE 2021 as per the GATE 2021 notification that any person can appear for the two combination of subject, but that should be in the given of table 4A of that information brochure, like that is the IIT Bombay generated yesterday. So here are the list of GATE 2021 papers. What are the different types of papers GATE 2021 conducts? That is, there nearly two subjects has been included, like the environmental sciences and one applied science and humanities का subject include हुआ है. So all these will be combinedly scores to the 27 subjects in GATE 2021. What will be the pattern of examination and what are the detailed marking schemes? Then the strategy for GATE 2021, how we should appear, how should we prepare for the GATE 2021 exam so that the maximum benefit and the minimum effort से maximum benefit हम लोगों को मिल सके, because this year काफ़ी changes हुआ है. लास्ट ईयर तक MCQs और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस ही आते थे. इस बार मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पेपर्स में आएंगे. तो to appear for that question, to solve for that question, we should have to be thorough about the concepts, because before that we cannot take a fall play or the कोई भी different types of strategies से नहीं कर सकते. उसके लिए हमको बहुत thoroughly चलना पड़ेगा, कोई भी shortcut से work नहीं हो पाएगा. Then after that we are going to discuss about the official syllabus for environmental science and engineering in tabulated form. Okay. What are the different parts of subject? Nearly there is a 9 parts of this subject, and one is additional is aptitude sections. So what are the different parts and what are the different topics has been included? Actually previously I have uploaded one predicted syllabus which has been generated by me, or the prediction tha, but right now IIT Bombay includes some additional topics in this syllabus. So I have to upload those topics for that. So I am preparing one additional video for that, so that there will not be any missing points in this whole syllabus. So start करते हैं हम लोग. First one is the highlights of GATE 2021. So highlights for GATE 2021. इसमें क्या है कि किस डेट्स में एग्जाम होगा, लाइक द 5th, 6th and 7th and 12th, 13th and 14th फरवरी 2021 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, विच इज़ बीन इन 2 सेशंस. जो फर्स्ट सेशन होता है वो मॉर्निंग में 9 AM से 12 PM तक होता है. देन आफ्टर द 2 PM to 5 PM से आफ्टरनून सेशंस रहता है. दोनों सेशंस में सब्जेक्ट के पेपर डिफरेंट होता है. दोनों सेशन का मिला करके फिर कंबाइंडली ये कट ऑफ जनरेट किया, मतलब डिफरेंट सेक्शंस के कट ऑफ को करने के बाद फिर नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स करते हैं. ठीक है, तो वो एक स्ट्रेटजी रहता है. जो एग्जाम होगा दैट विल बी अ फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. नियरली 2 subjects have been included. First one is the environmental science and engineering, and second subject will be, first one is environmental science and engineering and second will be humanities and social science in economics, English, linguistic, philosophy, psychology and sociology. So these subjects have been included this year. So right now combinedly these combines to the 27 subjects. ठीक है, अब ये टोटल सब्जेक्ट्स मिल करके 27 सब्जेक्ट्स हो गए हैं. जो इसका सिलेबस है, लाइक जितने भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं या जो प्रीवियसली पहले से सिलेबस थे, सारे सिलेबस में कुछ ना कुछ रिविजन्स किया गया है. मोस्ट ऑफ द टॉपिक, काफ़ी सारे टॉपिक्स को कम किया गया है. इररेलेवेंट टॉपिक्स जो थे, जो प्रीवियसली काफ़ी समय से इंक्लूडेड थे बट उतना यूजफुल नहीं थे, उनको रिमूव किया गया, लाइक द सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सब में थोड़े थोड़े टॉपिक्स को रिमूव किया गया है. कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड भी किया गया है. सो ऑल टेस्ट पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में ही रहेंगे. पैटर्न इस तरीके से रहेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs रहेगा एग्जाम्स में, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस.
ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में रहेंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज वी ऑल नो अबाउट दैट। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या रहता है कि कोई भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका कोई भी ऑप्शंस आपको नहीं देगा, उसमें आपको सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स तक आपको उसका रिजल्ट्स निकालना रहेगा। दैट रिजल्ट शुड बी मैच विद द जो ड्यूरेशन जो इंटरवल देगा उसमें क्वेश्चन आंसर में, उस आंसर इंटरवल से मैच करना चाहिए। इफ़ योर आंसर इज करेक्ट बट your interval you have put the result in a certain nearly some amount of decibel and that is outside the duration provided by the gate authority in a answer book, so that will be treated as a negative marks, that will treated as a wrong question, but negative marks will not be allotted in a multiple choice questions, numerical answer type questions. Third one is a multiple select question. मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में रहेगा कि लाइक कोई भी एग्जाम्स में अगर हमारा एक ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ओके, देन देयर विल बी ऑप्शन सी एंड देयर विल आल्सो बी ऑप्शन डी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होगा कि आइदर आंसर 1 इज राइट और आंसर 2 विल बी राइट और आंसर 3 विल बी राइट और आंसर 4 विल बी राइट। इफ एनी ऑफ देम ए बी सी डी इसमें से अगर कोई भी एक करेक्ट है, देन अगर उसको हम लोग आंसर बुक में अपने कोट करते हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ राइट आंसर। बट सिनेरियो इज डिफरेंट इन अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। सिनेरियो क्यों डिफरेंट है? इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बोथ in these types of questions not only in these types of question not only A, B, C और D केवल ये इंडिविजुअली करेक्ट नहीं होंगे, मे भी ऐसा हो सकता है कि A, B, C both all the three will be right answer. So you have to put the answer that A, B, C all the three will be correct. Maybe there will be a answer, उसमें ऐसा होगा कि कुछ ऑप्शंस या तो ऐसे दे रखा होगा कि जिसमें आपको ये पुट करना होगा कि दैट आंसर ए बी सी विल बी करेक्ट, बी सी डी विल बी करेक्ट, ए सी डी विल बी करेक्ट और डी बी सी विल बी करेक्ट. So that will be okay. But if gate plays a role like the उसने नहीं शो किया and you have to put the bullet में put करना रहा कि that A, B and C तीनों को bullets पे put करना रहा, then that will not be a very easy task. So we have to study very thorough about that so that there will not be any scope of putting the wrong answer as जबकि आपको उस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है. सो दैट इज द सिनेरियो. ये थोड़ा सा चेंज हुआ इस बार. 1 और 2 सब्जेक्ट्स पेपर विल बी अलाउड बट कॉम्बिनेशन वही रहेगा. कॉम्बिनेशन क्या होगा दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रिलैक्सड है, लाइक द थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी उसमें अपीयर हो सकते हैं. ठीक है. और ऑलरेडी कंप्लीटेड यानी गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री वगैरह कर लिया है, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर में साइंस में कर लिया है, तो सारे लोग उसमें एलिजिबल होंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एक बार आप लोग गेट का वो जो ब्रोशर दिया उसको एक बार चेक कर लीजिएगा. मैं उसका लिंक आपको शो कर दूंगा. इसमें कोई भी अपर लिमिट्स नहीं है इसमें अपीयर करने के लिए. ठीक है. जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उसको गो एप्स पे जा करके आपको फिल कर देना होगा. ठीक है. अच्छा, जो गेट का स्कोर कार्ड रहेगा दैट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द रिजल्ट डेट ऑफ अनाउंसमेंट. जिस डेट को रिजल्ट अनाउंस होगा उस डेट से लेकर के 3 ईयर्स तक गेट स्कोर वैलिड रहेगा. ठीक है. अच्छा, जो ये ऑफिशियल डेट्स जो इसमें शो की गई हैं that will be a tentative as the today we are facing with the COVID-19 situation, lockdown and there will be a pandemic worldwide. So there the schedules of gate examination may be changed. ठीक है. एंड इंटरनेशनल लेवल पे क्या अगर कोरोना इस तरीके से रहा तो जो इंटरनेशनल सेंटर्स के ऊपर हमारे गेट के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं दैट उसको कंडक्ट करने के लिए वो कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, उसमें जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा. बाकी सारी डिटेल्स आप http:/gate.iitbombay.ac.in में जाकर के चेक कर सकते हैं. इस बार का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे है. ओके. देन द यूज ऑफ गेट स्कोर फॉर एम्प्लॉयमेंट. बेसिकली जो गेट का जो स्कोर होता है
उसको हम लोग हायर स्टडीज़ में एजुकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में एमटेक करने के लिए। जैसे कि मैंने आईआईटी धनबाद से इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमटेक किया। वो सिनेरियो अलग था कि कैंपस रिक्रूटमेंट में भी पीएसयूज आते हैं, बट जनरली जो गेट के स्कोर उससे डायरेक्टली पीएसयू इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू होता है, कुछ एग्जाम्स भी लेते हैं, देन फिजिकल होता है, उसके आता है, बट गेट उसमें ओपनिंग दे देता है। तो कौन कौन से पीएसयू जनरली उसमें बुलाते हैं, तो महारत्ना में जैसे BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, then IOCL, Indian Oil Corporation Limited, NTPC, Nuclear Power Corporation NPCIL, Oil and Natural Gas ONGC and PGCIL। ये सारे इंस्टीट्यूट जो है मिल करके हम गेट के एग्जाम्स के बेसिस पे, गेट स्कोर के बेसिस पे हमको लोगों को कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, सो दैट PSUs में मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह की जॉब के लिए जॉब ऑफर की जाती है। मेरे को कैंपस इंटरव्यू के थ्रू इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जॉब ऑफर हुआ है। सो वो एक सिनेरियो डिफरेंट है कैंपस रिक्रूटमेंट वाला, बट इट इज़ एडवांटेजियस टू डू एमटेक। मतलब एमटेक करना भी एक एडवांटेजियस है, आप लोगों को एक बेहतर डिग्री मिल जाती है, हायर डिग्री मिल जाती है मास्टर्स की, उसके साथ में अगर कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ तो एक वो एडिशनल चंक रहता है। ठीक है, कुछ और जैसे ग्रुप ए लेवल के पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देता है, सीनियर फील्ड ऑफिसर्स है, सीनियर रिसर्च ऑफिसर्स है, सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर भी गेट स्कोर के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होते हैं। देन सम अदर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी रिक्रूटमेंट करती है यूटिलाइजिंग द गेट 2021 स्कोर कार्ड फॉर रिक्रूटमेंट पर्पज रहता है। नोट एक चीज है कि गेट क्वालिफिकेशन डज नॉट इंश्योर अ PSU जॉब। जो गेट का जो क्वालिफिकेशन होता है उससे जस्ट डायरेक्टली PSU में जॉब मिल जाएगा, दैट इज नॉट द केस। और एमटेक में मिल जाएगा या स्टाइपेंड आपको मिलेगा, स्टाइपेंड आपको मिलेगा अगर आप गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, अगर आप एमटेक करते हैं किसी भी जगह से, बट दैट इज नॉट ओके कि आपको गेट स्कोर आपका काफ़ी कम है, यू हैव जस्ट क्लियर द मार्क्स लाइक द 25 या 26 मार्क्स गेट का कट ऑफ है, एंड यू हैव कंप्लीटेड दैट, यू हैव क्लियर दैट मार्क्स एंड यू आर थिंकिंग दैट यू विल गेट द जॉब, you will get the job in a PSU and you will join MTech in a very reputed Indian IITs। so that is not basically the case। उसके लिए क्या है कि आपको उस सारे लोकेशंस का कट ऑफ मार्क्स भी क्लियर करना पड़ेगा PSUs का, so that is the case। बाकी के लिए आप लोग उसमें न्यूज़पेपर्स वगैरह में चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पेपर्स अलाउड टू अपीयर इन अ गेट 21। कौन कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उसको समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स अवेलेबल। सो सब्जेक्ट्स में जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसी में होता है, देन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये एक नया सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है इस बार। देन इकोलॉजी, जियोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिजिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग साइंस एंड ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, ये भी इस बार एक न्यू इंक्लूड हुआ है, एंड लाइफ साइंसेस। सो ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। अब इसका कॉम्बिनेशंस किस तरीके से, लाइक दी एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है वो दैट विल बी विद द एक्सीज इंजीनियरिंग साइंसेस के साथ में दे सकता है एग्जाम। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, यू कैन चेक हेयर एंड यू कैन चेक ऑल्सो इन अ गेट ब्रोशर। सो एडिशनली लाइक अगर हम सिविल इंजीनियर और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस बार वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसमें जनरली हम लोग कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। लाइक अगर सिविल इंजीनियर को अपीयर करना है तो सिविल इंजीनियर अगर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, लाइक पुटिंग द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द सिविल इंजीनियरिंग, सो दे कैन अपीयर फॉर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एंड दे कैन ऑल्सो अपीयर फॉर इन्वायरमेंटल साइंसेज। फॉर्म फिल करना होगा, फर्स्ट चॉइस देना होगा प्राइमरी पेपर का, एंड दस देयर विल बी सेकेंडरी पेपर की चॉइस देनी होगी। वो चॉइस देने के बाद में आप लोगों को एलिजिबल होना पड़ेगा। देन उसके बाद में जो फॉर्म फिल होगा उसकी फ़ीस वगैरह डिफरेंट, अलग अलग फ़ीस होगी दोनों की। बट होगा क्या कि सम केसेस में मे बी
सेकेंड पेपर में एलिजिबल ना हो पाए, लाइक अगर कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, अगर उतनी लोकेशंस नहीं हो पाई सेंटर्स, तो सेकेंड पेपर अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपको वो फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। उसी तरीके से अगर हम लोग इन्वायरमेंटल साइंसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो उस केस में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भर सकते हैं सेकेंड पेपर, एंड सिविल इंजीनियरिंग से सेकेंड पेपर हम लोग फिल कर सकते हैं। लाइक अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हमारा फर्स्ट पेपर रहता है, देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम लोग सेकेंड पेपर फिल कर सकते हैं। फोर्थ वन, अगर हमारा AR रखते हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग फर्स्ट पेपर रहता है, तो सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल पेपर में दे सकते हैं सेकेंड पेपर में। सो दीज आर द सम कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल। ये डायरेक्टली जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसी समय हम लोगों को शो होगा, वहां पे जाकर के फिल कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। सो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन? बेसिकली जो एग्जामिनेशन मोड रहेगा वो CBT रहेगा। ड्यूरेशन एज ऑफ एग्जाम जो रहेगा दैट इज 3 आवर्स। 3 आवर्स की ड्यूरेशन एग्जाम में रहेगी, ठीक है। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है 27 हैं, इसमें 27 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। देन सेक्शंस जो है जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन रहेगा, और बाकी जो कैंडिडेट जो और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चंस विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स क्वेश्चंस विल बी देयर। क्वेश्चंस की जो एबिलिटीज रहेगी, लाइक द रिकॉल करके, अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली रिकॉल करके यूज कर सकते हैं। लाइक कि अगर इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग में अगर क्वेश्चंस रहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर कौन कौन सी हैं, तो उसमें 3-4 ऑप्शन देगी, लाइक द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। ये डिफरेंट लेयर्स के बारे में दे देगा, तो उसको सेलेक्ट करना, लाइक द रिकॉल करने का क्वेश्चन है, तो ये जनरली हमारा रिकॉल बेसिस क्वेश्चन रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में, लाइक इफ देयर विल बी अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर कोई क्वेश्चन है, या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ट्रिकलिंग फिल्टर्स के ऊपर कोई A1 क्वेश्चंस दे दिया, सो वो यूज हो जाएगा। लाइक एप्लीकेशंस पार्ट के ऊपर कोई क्वेश्चंस है, या एनालिसिस या सिंथेसिस कर सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली द 4 एप टेस्टिंग एबिलिटीज रहेगा, जिसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस का प्रकार रहेगा, लाइक द जनरल एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस, जिसमें आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस विल बी फॉर 1 मार्क्स, 5 questions will be for 1 marks, and 5 questions will be for 5 questions will be for 1 marks and 5 questions will be for the 2 marks के रहेगा। और 55 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें डिफरेंट सेट्स में डिवाइडेड रहेगा। टोटल मिला के 65 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 आवर्स का टाइम रहेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। सो उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस प्रकार से रहेंगे, एक्सेप्ट जो आर्किटेक्चर, CY, EY इन सब्जेक्ट्स को छोड़ करके बाकी में 15 मार्क्स जनरल रहेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 13 मार्क्स फिक्स रहेगा, एंड देन 72 मार्क्स का टोटल जनरल टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। उसी तरीके से जो मार्क्स जो इन पेपर्स में जो यहाँ पे एक्सेप्ट था उसमें क्या है 15 मार्क्स रहेगा, एंड सब्जेक्ट्स में सीधे 85 क्वेश्चन जो है टेक्निकल रहेंगे। मैथमेटिक्स का वहाँ कोई फिक्स नहीं है। मार्किंग स्कीम कैसे रहेगा, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, और जो ये 1 मार्क्स है उसके लिए निगेटिव मार्क्स रहेगा 1/3, एंड 2 मार्क्स के लिए निगेटिव मार्क्स रहेगा 2/3। तो बेसिकली ये सिस्टम है, किस तरीके से अपीयर होगा, पैटर्न क्या रहेगा। और मार्किंग स्कीम जो है वो डिफरेंट इस तरीके से रहेगा कि लाइक 15 मार्क्स 85 इतना, ठीक है। अगर 13 क्वेश्चन है तो उसका सिस्टम किस तरीके से डिवाइड रहेगा। टोटल टाइम सब में 180 मिनट्स है, और मार्क्स जो है 100 मार्क्स रहेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द हाईलाइट्स एंड अदर पार्ट्स, व्हाट आर द एग्जाम पैटर्न्स, वो सब कवर कर लिया। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली। सो इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग को अगर हम लोग इसमें स्पेसिफिकली समझ रहे हैं तो उसके लिए वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक द मैथमेटिक्स है, फाउंडेशन है, सॉरी व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेगा,
ठीक है, इसको सबको डिस्कस करेंगे। देन उसका किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मार्क्स क्या क्या प्रपोज रहेंगे। ये एक प्रपोज मार्क्स है, एक्चुअली मे नॉट बी, देयर विल बी सम चेंजेस इन दिस पैटर्न, बट एज ऑफ नाउ जितना मेरे को नॉलेज है उसके मुताबिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज जनरली दिया जाएगा। सो सब्जेक्ट जो है मैथमेटिकल फाउंडेशन है, देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, water resource and environmental hydraulics, water and wastewater treatment management, air and noise pollution, solid waste management, global and regional environmental issues and environmental management, sustainable development. ये was all the subjects that has been discussed previously in the previous video, मैंने डिस्कस कर रखा था वही है। कुछ चेंजेस इसमें सब्जेक्ट्स में किए गए हैं, सम एडिशनल टॉपिक्स को ऐड किया गया है, कुछ टॉपिक्स को इसमें से रिमूव भी किया गया, बट जनरली आई हैव नॉट रिमूव दोज टॉपिक्स बिकॉज जनरली मे बी गेट में ऐसा होता है कि सिलेबस में नहीं रहता है, बट सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सम स्मॉल टॉपिक्स जो हैं 2-3 टॉपिक्स को उसमें से रिमूव कर दिया गया, बट आई एम नॉट रिमूविंग दो टॉपिक टू द दिस सिलेबस बिकॉज वी हैव टू कवर all those subjects, all those topics, so that there will not be any scope to do the wrong question or the questions को छूटने का कोई भी स्कोप रहे। सो एट फर्स्ट तो पार्ट 1 है, दैट इज मैथमेटिकल फाउंडेशन। इसमें जो सब्जेक्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज अ लीनियर अलजेब्रा, देन कैलकुलस, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड अ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। लीनियर अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, तो ये सारा लीनियर अलजेब्रा में है। कैलकुलस में है फंक्शंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज वगैरह रहेगा। देन द टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, डिफिनेट एंड इंडेफिनेट इंटीग्रल, देन एप्लीकेशन किस तरीके से एरिया और वॉल्यूम निकाल भी करते हैं, पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ये कैलकुलस में है। देन डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर एंड नॉन लीनियर ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर ओडी, कॉचियन यूलर्स इक्वेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं, बट हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, देन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, सिंगल एंड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, टी टेस्ट। ये एनोवा वाला टॉपिक इन लोगों ने शो नहीं किया है, बट जनरली बीइंग अ एनवायरमेंटल इंजीनियर इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अभी तो ये सिलेबस में नहीं है, बट इसका सम टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर हम लोग पढ़ाएंगे, जब वी विल डिस्कस अबाउट दैट, सो दैट कि अगर इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो क्वेश्चन छूटे ना। सो इसको कवर करना जरूरी है। देन ये नया एक एडिशन किया हुआ है इन लोगों ने इस बार, ये न्यूली एडेड टॉपिक है, जैसे न्यू ऐड किया है इसमें, सॉरी ये टॉपिक्स को इन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रिस्क एंड रिलायबिलिटी एनालिसिस, ये सारा टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड किया है जो येलो से है। सो इसको हम लोग कवर कर लेंगे। देन फिर सेकेंड टॉपिक हमारा आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री ऑफ इंजीनियर्स, देन प्रिंसिपल ऑफ वाटर केमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। इसमें इन लोगों ने एक टॉपिक सॉइल केमिस्ट्री और इंक्लूड कर दिया है। सॉइल केमिस्ट्री में जैसे सॉइल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मैटर्स क्या रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं उसको, कैटायन एंड बेस एक्सचेंज कैपेसिटी क्या रहता है, सैचुरेशन एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट SAR जो है Na+/√CA+Mg/2 का अंडर रूट रहता है। तो ये जो है वो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह रहता है, लीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। देन हमारा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री फॉर इंजीनियर्स जो है, इसमें कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, केमिकल इक्वेशंस, कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविटी, देन स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, देन रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रिया, देन थर्मोडाइनमिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, then water quality parameters like the physical, chemical and biological water quality parameters, like physical water quality parameters like the suspended solids, turbidity, color, taste and odor and temperature, like the chemical water quality parameters like the dissolved solids, hardness, alkalinity, pH, chloride content, nitrate, phosphate, some minerals like the toxic and non-toxic minimal minerals like cadmium, arsenic, ऑल दीज विल बी डिस्कस। देन एसिड बेस इक्विलिब्रिया किस तरीके से रहता है, बफर सोल्यूशंस, कार्बोनेट सिस्टम, कॉम्प्लेक्सेशन, प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर एंड देयर स्पेसिफिकेशन, ये रहेगा।
देन हमारा एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये थोड़ा एक इंक्लूड हुआ है। देन रिएक्टिविटी ऑफ ट्रेस सब्सटेंसेज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। देन अर्बन एटमॉस्फेयर, स्मॉग एंड पार्टिकुलेट मैटर, केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन, केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन बाय हेलोनेटेड स्पेसीज में रहेगा। इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से ओजोन का डिस्ट्रक्शन होता है एट द 243 नैनोमीटर से। अगर कम की लाइट है, वेवलेंथ की लाइट है, तो उसमें जो एनर्जी रहेगा वो एनर्जी उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ओजोन के, ठीक है। तो ये इसमें ओजोन कैटालिटिक साइकिल्स एंड चैपमैन रिएक्शंस वगैरह को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओजोन डिस्ट्रक्शंस में कितने हाइट के ऊपर कितनी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन रहती है, लाइक दैट 10 ppb पार्ट्स पर बिलियन जो है कॉन्सेंट्रेशन रहती है वो उसमें एट द हाइट ऑफ 35 किलोमीटर, 35 to 40 किलोमीटर्स की हाइट पर रहती है। किस यूनिट में करते हैं, डॉप्सन यूनिट में करते हैं। डॉप्सन यूनिट्स क्या रहता है, कितनी उसकी थिकनेस रहेगी अगर उसको हम लोग MSL पर लेकर के आए, ठीक है। तो वो सब डिस्कस हम लोग करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जो है थर्ड सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो इंसिनरेशन है या कोई भी जो सिस्टम है या मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल है या वन मोर थिंग लाइक द बायोमैग्निफिकेशन है, उसको सबको डिस्कस करने के लिए, या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर एरोबिक प्रोसेस से ट्रीट कर रहे हैं, एनारोबिक प्रोसेस से ट्रीट कर रहे हैं, सो फॉर ऑल दीज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में सब्जेक्ट पोर्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन क्लासिफिकेशंस रहेगा, इसको डिस्कस करेंगे। प्लांट्स माइक्रोब एंड सॉइल माइक्रोब लाइक द हमारा माइकोराइजा है, लाइकेन है, फंजाई है, एल्गी है, इसको सबको डिस्कस करेंगे। देन बायोजियोकेमिकल साइकिल हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक द नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। इसको सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। बायो रेमिडिएशंस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में माइक्रोबायोलॉजी का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। लाइक कि अगर हमारा टाइम पीरियड यहाँ पे कुछ है, ठीक है, सो उसमें अगर ग्रोथ होता है तो ग्रोथ फेज कुछ इस तरीके से ग्रोथ रहेगा, फिर उसके बाद जो है वो ग्रोथ रहेगा, लॉग ग्रोथ फेज में जाएगा। देन फिर देयर विल बी अ स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज के बाद में देयर विल बी अ इंडिविजुअल कैटाबॉलिज्म फेज। अगर हमारे ऑर्गेनिक मैटर है ये डिक्रीज कर रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे रहेगा या BOD रहेगा, BOD यहाँ पे डिक्रीज करता रहेगा, BOD डिक्रीज करता रहेगा, और ये नंबर ऑफ जो है वो ग्रोथ जो है ये इंक्रीज करेगा टाइम के साथ में। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ तक हमारा जो है ग्रोथ जो है कुछ नहीं है, तो ये हमारा लैग फेज रहेगा। यहाँ से यहाँ तक लॉग ग्रोथ फेज रहेगा, यानी कि dN/dt जो है टाइम के साथ में नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज हो रहे हैं। देन देयर विल बी अ स्टेशनरी फेज, ये जो है हमारा दैट इज द स्टेशनरी फेज। यहाँ पे फेज जो रहेगा वो स्टेशनरी फेज रहेगा। ये जो है स्टेशनरी फेज रहता है, ठीक है, ये स्टेशनरी फेज है। इस फेज के बाद में यहाँ पे इंडोबोलिक कैटाबॉलिज्म हो जाता है। कैटाबॉलिज्म हो जाता है यहाँ पर। सो उसका सिस्टम क्या है कि अगर हमारा ये लैग फेज है और लॉग ग्रोथ फेज है, लैग फेज में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो डिलेड ग्रोथ रहेगी। अब जब लॉग ग्रोथ फेज में जाएगा तो लॉग के हिसाब से ग्रोथ होगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि dN/dt जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, विच मीन्स कि अगर हमारा जो dN/dt ग्रेटर देन 0 रहेगा, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज हो रहा है। स्टेशनरी फेज में क्या है कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट उसमें इंटरनल ग्रोथ हो रही है, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। एंड कैटाबॉलिज्म फेज में क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से। सो ये रोल रहेगा। अब ये किस तरीके से डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर करेंगे, इन BOD का है, BOD जो ऑर्गेनिक मैटर उसको किस हिसाब से डिकम्पोज करेंगे ये समझ आ जाएगा इसमें। सो these will be discussed in our next sections.
देन फिर सेल माइक्रोबायोलॉजी है, सेल केमिस्ट्री या सेल बायोलॉजी को समझेंगे यहाँ से। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद में फिर बॉन्ड्स एंड समझेंगे, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स वी विल डिस्कस। देन आइसोबेरिज्म एंड बायो मॉलिक्यूल्स, देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, क्रोमोसोम, एंडोस्पोर, ठीक है, स्टोरेज, प्रोटेक्ट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सब डिस्कस करेंगे। इसमें फिर ग्रोथ जो है, वही ग्रोथ का जो ग्रोथ रेट है, डबलिंग टाइम है, इसमें एक मोनाड काइनेटिक्स रहता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। dN/dt इज इक्वल टू kn टू द पावर t अपॉन s प्लस a, इसको एक मोनाड्स मॉडल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। देन फिर किस तरह कौन कौन सी कल्चर मीडिया रहती है, बैच एंड कॉन्टिन्यूस कल्चर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स यूजिंग फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स भी डिस्कस हम लोग करेंगे। देन फिर माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, देन ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्मेंटेशन, एनारोबिक एंड एनर्जी बैलेंस, देन फास्फोरिलेशन, एंजाइम है, एंजाइम काइनेटिक्स, ये एक नया और ये ऐड किया हुआ है, ये टॉपिक हम लोगों ने पहले नहीं डिस्कस किया था, सो इसको हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, इसको भी समझ लेंगे। देन माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ, इसको समझ लेंगे, पैथोजेंस, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देन क्वांटिफिकेशन ऑफ कोलिफॉर्म यूजिंग MPN, मेम्ब्रेन MFT, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक्स, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वगैरह क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जनरली क्या होता है, एक इंडिकेटर टाइप ऑर्गेनिज्म रहता है, लाइक कि अगर कोई भी हमारा बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की जो कैपेसिटी रहती है टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल फैक्टर में जो चेंजेस, उसको रेजिस्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सो हम लोग किसी भी वाटर में कोलिफॉर्म की टेस्ट करते हैं, लाइक कि अगर कोलिफॉर्म उसमें प्रेजेंट है वाटर में, तो हम लोग ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वाटर में कंटामिनेशन है या नहीं है। इट मे बी द कंटामिनेटेड वाटर, इट मे नॉट बी कंटामिनेटेड वाटर। बट सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर कोलिफॉर्म एब्सेंट है, नहीं है, और इसका टाइम पीरियड T जो है रहने का वो हायर था, सॉरी उसका टाइम पीरियड हायर था, तो अगर कोलिफॉर्म प्रेजेंट नहीं है तो इट इज श्योरली वी कैन से कि पैथोजेंस भी नहीं होंगे प्रेजेंट। सो इसलिए हम लोग कोलिफॉर्म की टेस्टिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वाटर रिसोर्स है, इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स। वाटर रिसोर्स है, इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स जो है, ये सबसे मतलब मेजर पोर्शन है भाई, लाइक इसके बहुत सारे क्वेश्चन पहले सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते थे और पूछे जाते हैं अभी भी। सो दैट इज वाई वी हैव टू डिस्कस वेरी ब्रीफली इन दिस सब्जेक्ट, लाइक द ये सब्जेक्ट जो है देखने में कम लग रहा है, बट ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है, लाइक द इन्वायरमेंट के काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, वाटर क्वालिटी, थ्रेट्स टू द वाटर रिसोर्सेज, वाटर कंजर्वेशन, मैनेजमेंट पोर्शन भी इसमें कवर है। देन फिर ये पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है ना, ये हाइड्रोलॉजी के सेक्शंस में है। ये सिविल इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट था, सिविल इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट था, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन लगता है, हाइड्रो जियोकेमिकल साइकिल, वाटर बैलेंस, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, ये सारे क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी हम लोग कवर्ड कर चुके हैं, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं इन वीडियो 1, पहली वीडियो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। फ्लो हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ के कंसेप्ट, स्टेट डिस्चार्ज रिलेशनशिप, रिजर्वायर कैपेसिटी, सरफेस रन ऑफ मॉडल एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब हम लोगों को कवर करना है, कर लेंगे। फिर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में ये काफ़ी पोर्शंस जो है वो सॉइल मैकेनिक्स वगैरह का पोर्शन है, या कन्फाइंड एंड कन्फाइंड एक्यूफर रहेगा, डुपिट सोल्यूशन, थीम सोल्यूशन रहेगा, वडोस जोन है, ठीक है, सैचुरेटेड जोन है, कैपिलरी फ्रिंजेस है, ये सब डिस्कस करेंगे। पोरोसिटी, परमेबिलिटी, ट्रांसमिटिविटी, ठीक है, डार्सीज लॉ, स्टेडी स्टेट, ये भी हाइड्रोलॉजी का ही पोर्शन था। दिस इज ऑल्सो द हाइड्रोलॉजिकल पोर्शन, ये भी हाइड्रोलॉजी का ही पोर्शन है। अब यहाँ पे आता है ये इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स, या ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सेक्शन है, जिसमें FM का सेक्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा, सिविल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सम पोर्शन इसमें आगे चल के देखिएगा, लाइक द ये बॉयंसी, फ्लोटेशन, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप्स, ये रहेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ से इंक्लूड किया था इन्होंने, एक नया टॉपिक और इसमें। देन किनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, कंटिन्यूटी, मोमेंटम एंड एनर्जी इक्वेशन, चैनल हाइड्रोलिक्स, स्पिक, ये यहाँ पे OCF का सेक्शन है, OCF, ओपन चैनल फ्लो, ये भी एक सब्जेक्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग में
काफ़ी क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत मतलब मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक अगर वी विल टॉक अबाउट कि जनरली 10 मार्क्स 7 to 8 मार्क्स 9 मार्क्स के क्वेश्चन तो इसी सेक्शन से आ जाया करते हैं, ठीक है, इससे और ओपन चैनल फ्लो मिला करके। सो इफ विल टॉक अबाउट इस पूरे सेक्शन से बात करें तो जनरली जो है वो 14-15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन है, कवर करने में काफ़ी समय 100 आवर्स या 80 आवर्स से कम इसमें समय नहीं लगेगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम में ये सब्जेक्ट कवर हो पाएगा, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। देन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं, कुछ चीज़ें जो है मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ इन लोगों ने, लाइक सम पोर्शंस को इन लोगों ने मतलब शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर दिया है, बट दैट विल नॉट बी अ शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट में क्वेश्चंस नहीं पूछाएंगे, काफ़ी लॉन्ग टर्म में क्वेश्चंस रहेगा। सो उसके लिए हमने इसको पूरा ही कवर करेंगे, काफ़ी मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड तक हम लोग इसको कवर करेंगे। तो इसको हम लोगों ने खुद से ही 3 पार्ट्स में बांट लिया, लाइक द वाटर ट्रीटमेंट, इसको हम लोगों ने खुद से ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, लाइक द वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड एडिशनल टॉपिक्स। तो वाटर ट्रीटमेंट में वाटर डिमांड्स एंड सोर्सेज एंड कन्वेंस, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन अ वीडियो 2nd, 3rd एंड 4th ऑफ इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो है लास्ट 2-3 वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं और कर रहे हैं। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स तक हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। वी विल कवर इट बाई द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम लोग इसको कवर कर लेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सेक्शन में। देन फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर स्क्रीनिंग, ये कवर करेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देन फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट, ये सारा रहेगा। सीवेज फार्मिंग इन्होंने पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था उससे कुछ और ऐड किया है, और एक स्पेसिफिकली रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ रिएक्टर डिजाइन, मास बैलेंस, मास एनर्जी बैलेंस, ऑर्डर एंड रेट ऑफ रिएक्शन, बैच रिएक्टर्स, कंप्लीटली मिक्स रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर, ये स्पेसिफिकली इन्होंने डिस्कस किया है। इसके मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्या कंसेप्ट रहता है प्लग फ्लो रिएक्टर्स में। अच्छा, लास्ट ईयर गेट के एग्जाम में, दिस ईयर गेट एग्जाम नॉट, इसके प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम में इन लोगों ने एक प्लग फ्लो रिएक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है, और कंप्लीटली मिक्स रिएक्टर के ऊपर भी एक आध बार क्वेश्चंस गेट के एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग पोर्शंस में आ चुके हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते काफ़ी, मतलब वैसे तो सेक्शंस काफ़ी आसान है, लेकिन अगर काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस इससे बनाए जा सकते हैं। सम एडिशनल टॉपिक जनरली जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इससे रहेंगे, लाइक यूट्रोफिकेशन, थर्मल लाइट एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स वगैरह है, ठीक है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के कॉन्सेप्ट जो है, एफ्लुएंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देन फिर एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन में काफ़ी चेंजेस है, लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन में अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ऐड करा है इन्होंने, नेचर एंड एंथ्रोपोजेनिक रिसोर्सेज, ये रहेगा, सिंक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इंडोर एयर पॉल्यूशन ऐड किया है। Then there will be a air quality indices and visibility, air pollutant system, gases and particulate, air quality standard, primary and secondary pollutants, ये भी डिस्कस किया है। Then particulates मैटर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, मेजरमेंट उनका कैसे करते हैं, what are the different control mechanism like the gravitational settling chambers, air electrostatic precipitator, bag filter, fabric filter, wet collectors, तो ये भी डिस्कस किया। लाइक द गैसियस पॉल्यूटेंट्स में मेजरमेंट, कंट्रोल मेथड्स किस तरीके से हैं, मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, कौन से मतलब सॉल्यूशंस वगैरह बनाते हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूड किया जाता है, कंट्रोल सॉल्यूशन वगैरह, उसके ऊपर 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, वेपर लिक्विड, वेपर सॉलिड, इसको डिफ्यूजन एंड इंटरफेसियल फिक्स लॉ ये इंक्लूड किया इन्होंने स्पेसिफिकली। देन फिर व्हीकल पॉल्यूशन में रहेगा कैटालिटिक कन्वर्टर का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ एयर क्वालिटी का इन्वेंट्री कैसे बनाते हैं, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। एक जगह यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडाइसेस को भी इंक्लूड किया था, मे बी मैंने, हाँ सॉरी, ये देखिए जो एयर क्वालिटी इंडाइसेस है इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस इसके ऊपर एग्जाम में आ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एयर क्वालिटी इंडाइसेस, किसी एक एयर क्वालिटी इंडाइस के बारे में लेकर के उसका फिर हम लोग मेजरमेंट करेंगे, नॉक्स स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देन फिर नॉइस पॉल्यूशन क्या है, नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी आ चुके हैं, इक्विवेलेंट नॉइस लेवल निकलवाता है या LDN LDD निकलता है, सो दैट विल बी आस्क इन दी सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन। सो ये भी नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे जनरली पूछा जाता है, जनरली पूछा जाएगा बेसिकली नॉइस पॉल्यूशन से।
देन फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट हायरार्की वगैरह है, ठीक है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सोर्स जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब डिस्कशन रहेगा। देन फिर सॉइल कंटामिनेशन एंड लीचिंग ऑफ कंटामिनेशन इनटू ग्राउंड वाटर, ये भी डिस्कशन एग्जाम में ये चीज़ नया ऐड किया है, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। देन फिर हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट पे हैजार्डियस वेस्ट क्या क्या है, फेट्स ऑफ कंपाउंड्स क्या है, फिर बायोमेडिकल वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किस तरीके से करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज में ग्लोबल इफेक्ट्स रहेगा, क्या क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज, अर्बन हीट आइलैंड, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनर्जी कंजम्पशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैज बीन, मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें कवर हम लोग कर चुके हैं। कुछ थोड़ा बहुत ओजोन लेयर डिप्लीशन अभी कवर नहीं किया, वो हम लोग कवर कर लेंगे ना इन्वायरमेंटल साइंसेज का जो सेक्शन है प्लेलिस्ट है उसमें। दूसरा जो जनरल स्टडीज़ का इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज का, उसमें हम लोगों ने इसको इन्वायरमेंटल इश्यूज को कवर कर लिया। इससे जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चन या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे भी इसी टॉपिक से। तो 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन ये कवर कर सकता है, 3 to 4 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, देन फिर लास्ट है हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा। इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ISO 14000 रहेगा। इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग किस तरीके से करते हैं, स्कोप, जनरल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, EIA क्या है, EIA 2006 के बारे में डिस्कशन करना है। 2018 का जो ड्राफ्ट EIA आया है उसमें क्या फॉल्स है, क्या चेंजेस आए हुए हैं, व्हाट आर द डिफरेंट, क्या किस किस चीज़ों को रिलैक्स किया गया, उसको समझना जरूरी है, क्यों उसका इतना अपोज किया जा रहा है वो भी डिस्कशन करना जरूरी है। लाइफ साइकिल असेसमेंट करना है, ठीक है। दिन सॉइल कंटामिनेशन, लीचिंग कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर, ये भी क्वेश्चन जो है इसमें आ सकता है। देन फिर इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी, सॉरी ये सेक्शन इसका नहीं है, ये सेक्शन इसमें नहीं है, सॉरी, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। वेट, ये सेक्शन जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट का नहीं था, ये कोई दूसरे सब्जेक्ट का था, रॉन्गली हमने इंटरप्रेट कर दिया यहाँ पर, सॉरी। फिर ये इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी में, इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी क्या है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स का रहेगा। वाटर एंड एयर एक्ट विद अमेंडमेंट, देन EPA क्या है, ठीक है। देन फिर उसके बाद में डायरेक्टली NGT के बारे में डिस्कशन किया गया है, EPA से किस तरीके से इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ वगैरह है। ये देखिए कुछ टॉपिक्स हैं, ये मतलब इसमें इंक्लूडेड गेट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट इनके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जनरली इसको मतलब ऊपर से सम सेक्शन में क्या क्या सेक्शंस हैं, कब आया ये एक्ट, जनरल प्रोविजंस क्या है, मतलब 5 to 10 मिनट्स की वीडियोस में इसको हम लोग स्पेसिफिकली कवर कर लेंगे, ताकि एक जनरल एक ओवरव्यू रहे इस चीज़ का, ताकि अगर क्वेश्चन अगर पूछ भी दिया जाए तो कोई रॉन्गनेस ना रहे, मतलब गलत ना हो पाए। देन फिर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ये रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की इशूज़ वगैरह रहेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन फिर उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के लिए कंजर्वेशन जो करेंगे उसका क्या सिस्टम है। देन फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन, देन एनर्जी एनवायरनमेंट नेक्सस एक टॉपिक इन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है। देन फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइक द मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन टू कन्फर्म द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स, इसको करने के इस तरीके से मतलब रिसोर्सेज को कंजर्व करना कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से करते हैं। तो इसके क्या डेवलपमेंट है, डेफिनेशंस क्या हैं, कंसेप्ट क्या है, हर्डल्स क्या क्या हैं थर्ड वर्ड में। देन इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स रहेगा। देन फिर वाटर फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इसको भी कवर करना जरूरी है। ऑल्दो ये गेट के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हम लोगों ने इसको काफ़ी यहाँ तक डिस्कस किया, ठीक है। अब प्रीवियसली हम देखते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से था। जनरली पहले भी मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस यूनिट लाइक द जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, मैथमेटिक्स जो है 10 मार्क्स की रहती है, तो 10 मार्क्स जो है ये जनरली अब ये 13 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है, ये 13 मार्क्स हो गया। देन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 9 मार्क्स, वाटर इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी 8 मार्क्स, देन वाटर इन्वेस्टर 10 मार्क्स, ठीक है। ये हाइड्रोलिक्स जो है ये मे भी
14 से 15 मार्क्स का भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। ये तो 16 मार्क्स है, मे बी जो है वो 13 मार्क्स हो जाएगा, थोड़ा कम हो सकता है ये, ठीक है। ओके, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन 10 मार्क्स ठीक है, सॉलिड मैनेजमेंट 10 मार्क्स ठीक है, ग्लोबल इन 4 मार्क्स ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सस्टेनेबिलिटी 8 मार्क्स, ये 6 मार्क्स तक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। सो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, वी हैव कवर्ड द ऑफिशियल सिलेबस गेट 2021। स्ट्रेटजी किस तरीके से कवर करेंगे, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर किया है। स्ट्रेटजी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए राइट नाउ अभी हम लोगों का क्या है कि मंथ चल रहा है, लाइक अगस्त का स्टार्टिंग हो गया है। सो वी हैव द टाइम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सो हम लोगों को कवर करना है कि दिसंबर लास्ट तक इसका मेजर पोर्शंस कवर हो जाए। लाइक द सब्जेक्ट क्या क्या है, देखिए जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं इसका मेजर पोर्शन लाइक दो, देखिए जो वाटर एंड रिसोर्सेज है ये मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ये एक इंपॉर्टेंट है। एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, इतना पोर्शन कवर हो जाए, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये कवर इजीली हो जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं, तब तक 5 मंथ्स अभी हम लोगों के पास में हैं, सो एक बेटर स्कोर लाने जो है उसके लिए इजी हो जाएगा। मार्क्स को कवर करना, बेटर स्कोर गेट स्कोर इसमें लाया जा सकता है। नया सब्जेक्ट है, नया मार्क्स है, लोग कम रहेंगे तो स्कोप जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगा, मार्क्स को गेन करने का गेट स्कोर काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है। सो दैट इज़ वाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थ्योरी वगैरह को पढ़ाएंगे, देन उसके बाद में एक स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव पोर्शंस का एक अलग सेट रहेंगे। लाइक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर कुछ पूछे जा चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन में या इकोलॉजी में रहता था तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कोई स्कोप ना रहे कि कोई भी क्वेश्चंस गलत हो जाए। जो सब्जेक्ट्स बिल्कुल नए हैं, आज तक कभी गेट में उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आया है, उसको हम लोग बेस्ट बुक्स जो अवेलेबल हैं इन दिस सेक्शंस में, लाइक द एयर केमिस्ट्री के लिए जेकब्स है एंड हाइट्स बुक्स है, ठीक है, या सॉलिड मैनेजमेंट के लिए जो बुक्स है एक सेनोबगलस की एक बुक है, उसके ऊपर डिस्कशन है। सो ऑल दीज विल बी डिस्कस्ड बाय देयर इन द लास्ट सेक्शन में, जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको डिस्कशन कर लेंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग, कुछ जो सब्जेक्ट्स है वो कुछ हम लोग जो है बोर्ड्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, सारे फॉर्म्स में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे ताकि बेस्ट अवेलेबल रहे। अगर बोर्ड के ऊपर कोई डिस्कशन होता है तो उसका जो नोट्स की पीडीएफ है वी विल शेयर देयर इन अ पीडीएफ फॉर्म में, हम लोग या लिंक के तौर पे शेयर कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। गुड लक फॉर दैट। अच्छा सिलेबस है, अच्छे मार्क्स हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी है। सो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करना है, यह ध्यान देते हुए कि न्यू सब्जेक्ट है तो कुछ भी हो सकता है, गेट है कुछ भी इंक्लूड कर सकता है, ऐड कर सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, पेपर टफ भी बन सकता है, पेपर आसान भी बन सकता है। उस सब चीज़ को कवर करते हुए एक अच्छी स्ट्रेटजी लेकर के बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर नॉलेज के साथ एग्जाम्स में अपीयर होना है। सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का एनवायरनमेंट मास्टर यूट्यूब चैनल में काफ़ी स्वागत है। ऋषभ सिंह मेरा नाम है। ऑलरेडी मैंने जो है वो एमटेक कर रखा है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो काफ़ी अच्छे से मैं इसको डिस्कस करवा सकता हूँ। पीएसयू में मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्लेसमेंट भी मेरी हुई है, तो उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये यूज़फुल रहेगा एग्ज़ाम्स में, पीएसयूज़ वगैरह में किस तरीके से इंटरव्यू होता है, उसके ऊपर भी काफ़ी हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो इसमें कंटेंट, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों वगैरह को सब्सक्राइब करिए। लाइक बेसिकली जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग हैं, आर्किटेक्चर प्लानिंग से हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं, इन सब्जेक्ट से जो लोग हैं वो तो कम से कम इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है वो ये वीडियो जो है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सके, वो अपीयर कर सके एग्जाम में, ताकि बेहतर स्कोप खुल सके। कोविड-19 का समय है तो स्कोप हम लोगों को बना के चलना चाहिए कि हम लोग के पास काफ़ी स्कोप है, नॉलेज अच्छी रहेगी, स्कोप अच्छी रहेगी तो किसी भी जगह सक्सेस ईजिली मिल जाएगी। So thank you very much. Kindly like, share and subscribe my video. Thank you very much.